गुड इवनिंग एवरीवन शुभ संध्या। ମୁଁ ହେଉଛି ଅମ୍ଲାନ अंशुमत ସାହୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ MBBS ଛାତ୍ର। ମୋର NEET 2022 ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଥିଲା 424। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 11th ର 6th ୟୁନିଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେସନରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କେମିକାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆଉ ତାର PYQs। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Now equilibrium କୋଡ ଆଉ କୁହାଯିବ କାହାକୁ କୁହାଯିବ equilibrium? A system has reached the equilibrium state when it is not a static equilibrium, when there is a lot of activity at the boundary. The equilibrium first ଆମେ କରିବା equilibrium state କାହାକୁ କୁହାଯିବ? Equilibrium state ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ forward reaction ଆଉ backward reaction ଗୋଟେ reaction ରେ forward reaction ମାନେ ଯୋଉ reaction ରେ reactants ରୁ products ହୁଏ, ଆଉ backward ମାନେ ଯୋଉ reaction ରେ products ରୁ reactants ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ rate of forward reaction ଆଉ rate of backward reaction equal ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା କି equilibrium state achieve ହେଇଗଲା। ସେଟା both physical ଆଉ chemical equilibrium ପାଇଁ applicable। ଯେତେବେଳେ equilibrium attain ହବ, equilibrium state କୁ static equilibrium କୁହାହବନି, ସେତେବେଳେ both forward reaction as well as backward reaction continue ରହେ। but ଯେହେତୁ forward reaction ଆଉ backward reaction ର rate same ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗେ କି static ହେଇଗଲା, but actually ସେଟା dynamic equilibrium। ଦିଟା ଯାକ reaction equal rate ରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତ lot of activity at the boundary ହୁଏ। for example ଯେମିତି କି H2O liquid ରୁ H2 vapor, ଏଟା ଗୋଟେ physical equilibrium ର example। फेज चेंज रिएक्शन हम जानते हैं, फेज चेंज रिएक्शन सबुआडे इक्विलिब्रियम रिएक्शन एटा हम स्टार्टिंग रे भी पढ़िचे थर्मोडायनामिक्स रे। इक्विलिब्रियम रे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम बेले जो मिक्सचर थिबो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रे कंपोज हेथिबो सेही मिक्सचर को कहा जिवो इक्विलिब्रियम मिक्सचर। Equilibrium can be established for both physical processes as well as chemical reactions। मन रखो equilibrium physical processes as well as chemical reactions में establish हो परियो। Now when the reactants in a closed vessel at a particular temperature reacts to give products, the concentration of reactants keep on decreasing। obviously ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ closed vessel रे reactants माने ଗୋଟେ particular temperature रे react करिवे, ସେମାନେ products form करिवे, तो सेही process रे concentration of the reactants कमिबो, आस्ते आस्ते कमिते जिवो, while those of the products keep on increasing। ଆଉ products ମାନଙ୍କ concentration बढ़ी जिवो for some time, किछि समय ପାଇଁ। after which there will be no change in the concentration of either reactants and products। किछि समय जाए reactants ମାନଙ୍କ concentration कमी कमी जिवो, products ମାନଙ୍କ बढ़ी बढ़ी जिवो, until गोटे equilibrium state बा dynamic equilibrium achieve होबो, जेतेबेले forward reaction backward reaction दिरा जाको equal हो जिवो, आउ concentration change हबनी, concentration stagnant हो जिवो। but reaction stagnant हबनी, reaction दिरा जाको continue रहबो। तो rates of the forward और reverse reaction equal हो जिवो। now ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ state of chemical equilibrium। ଯେତେବେଳେ chemistry ରେ ଆମେ reactants और products को involve କରିବା। now reactants that proceed nearly to completion, ଆଉ based on the କେତେ extent ଯାଏ ସେଇ chemical reaction proceed करे before attaining equilibrium। equilibrium attain କରିବା ଆଗରୁ କେତେ ଦୂର ଯାଏ ସେ equilibrium proceed करे, ସେ basis ରେ ତିନି ପ୍ରକାର chemical equilibrium ଆମେ classify କରିପାରିବା। ସେଇ reaction ଯୋଉମାନେ to the extent of completion ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ almost complete ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ reaction ର concentration बहुत कम था, products रो बहुत अधिका था equilibrium रे। तापर आसे सेही reaction जो माने बहुत कम proceed करंती, तो reactants concentration बहुत अधिका था, product रो बहुत कम था equilibrium state रे। आउ थर्ड टाइप होचंदी सेही reaction जो माने reactants और product मानो concentration almost comparable था बा appreciable था। सेही केस रे equilibrium constant रो value moderate था, 10 to the power -3 ରୁ 10 to the power +3 ଭିତରେ। ଯଦି greater than 10 to the power 3 ହେବ equilibrium constant, ସେଇ case ରେ more products form ହେବେ। ଆଉ ଯଦି less than 10 to the power -3 ହେବ, almost ମାନେ proceed ହି କରିବନି almost reaction, ଯେହେତୁ reactant ର concentration ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, product ର ବହୁତ କମ ରହିବ equilibrium। now extent of reaction in equilibrium varies with experimental conditions like concentration of reactants, temperature, etc। ତ extent of reaction equilibrium state attain କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ extent ଯାଏ ସେ reaction ଟା proceed କଲା ସେଟା କାହା ଉପରେ depend କରିବ, ସେଟା depend କରିବ concentration of reactant ଉପରେ, temperature ଉପରେ, ଆହୁରି ବହୁତ factors ଅଛି। ତ ସେଇ factors ଆମେ ପରେ ପଢିବା। first ଦେଖିବା equilibrium involving, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ definition ଦେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ions involve ହେବେ aqueous solution ରେ, ସେଟାକୁ ionic equilibrium କହିବା। ଆଉ ଏବେ physical equilibrium ଦେଖିବା। physical equilibrium ର example phase transformation process, solid liquid, liquid gas, solid gas।
एटा है जीवो फ्यूजन एटा वेपोराइजेशन एटा सब्लिमेशन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रो एग्जांपल होची जेतला आइस और वाटर को हम परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस ग्लास रे रखिबा 273 केल्विन माने 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे सेते गोटे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो सेटा को आजिवो फेज चेंज इक्विलिब्रियम ऑफ फ्यूजन और इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली स्टैटिक होनी इक्विलिब्रियम सब डायनामिक देयर विल बी नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर ऑब्वियसली कंसंट्रेशन तो चेंज होबनी बट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस टू वाटर और रिवर्स रिएक्शन वाटर टू आइस इक्वल रहथिवो एतमे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और आइस चेंज होबनी for any pure substance at atmospheric pressure जो टेम्परेचर रे सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम रे रुहंती सेही टेम्परेचर को नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट व नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस कहा जाए और बोथ द ओपनिंग अपोजिंग प्रोसेस अकस्मातली दीटा जा ओपनिंग प्रोसेस गोटे थर रे साइमल्टेनियसली हुअंती और दीटा जा प्रोसेस सेम रेट रे हुअंती सो अमाउंट ऑफ आइस और अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट रहे ओके next होची liquid vapor equilibrium liquid vapor equilibrium कोन this equilibrium can be better understood if we consider the example of a transparent box carrying a U-tube एटा छडा एटा दरकार नहीं हम डायरेक्ट आसवा जस्ट लाइक फ्यूजन रे कोन होतला सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम रहउतले सिमिलरली हम जदी वेपोरेशन केस कहबा बा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कथा कहबा सेही केस रे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम रहबे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो ओके तो वाटर लिक्विड वाटर वेपर एटा गोटे एग्जांपल ऑफ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम ए केस रे रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो now equilibrium pressure exerted by water molecules at a given temperature remains constant and equilibrium vapor pressure of water increases with temperature तो इक्विलिब्रियम रे जो प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल माने एक्सर्ट करंट गोटे गिवन टेम्परेचर रे सेटा सब बडे कांस्टेंट रहे और ए जो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर हो सेटा टेम्परेचर से इंक्रीज कर टेम्परेचर बढ़िले इक्विलिब्रियम स्टेट रे वाटर प्रेशर जो वाटर वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करे से प्रेशर टा भी इंक्रीज करे एटा हम काली पढ़थिले वेपर प्रेशर केमिति टेम्परेचर बढ़िले बढ़े और टेम्परेचर कमिले कमे सेतमे प्रेशर कुकर रे खाद्य जल्दी कुक हो जाए और टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवापोरेशन एटा भी देखिथिले हमें काली सॉल्यूशंस चैप्टर रे कि लिक्विड व्हिच हैज हायर वेपर प्रेशर इज मोर वोलेटाइल एंड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट जार वेपर प्रेशर अधिका से अधिका वोलेटाइल और तार बॉइलिंग पॉइंट कम टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर तो सही जो कंप्लीट इवापोरेशन पे केते टाइम लागो सेटा डिपेंड का ऊपर करे लिक्विड रो नेचर ऊपर केते अमाउंट ऑफ लिक्विड नेचर और टेम्परेचर केते अछि ता ऊपर rate of condensation from vapor to liquid state is much less than the rate of evaporation को सिस्टम रे ओपन सिस्टम से रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत अधिक ऑब्वियसली जदि ओपन अछि तो सही केस रे विंड रो इफेक्ट रहबो और मल्टीपल इफेक्ट जो रेट ऑफ इवापोरेशन ता सब बहुत अधिक हबो रेट ऑफ कंडेंसेशन ता बहुत कम रहबो तो रेट ऑफ कंडेंसेशन मच लेस रहबो इवापोरेशन कंपैरिजन रे और ए ओपन सिस्टम्स रे इक्विलिब्रियम मेंटेन करबा से नॉट पॉसिबल ओपन सिस्टम रे इक्विलिब्रियम केबे भी अटेन हबनी एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी अटेन्ड इन ओपन सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करे में सब क्लोज सिस्टम दरकार काहे देखो जो एडे ओपन सिस्टम रे इवापोरेशन रो रेट सब कंडेंसेशन रो अधिक रहबो तो इक्वल दीटा जगह रेट हेले ही तो इक्विलिब्रियम अटेन हबो जोटा केबे पॉसिबल नै बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़िले बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो कमिले कमेबो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम जो देखिबा सॉलिड रो वेपर फॉर एग्जांपल कोन कोन सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम रो सब्लिमेशन रिएक्शन रो किए सब्लिमेबल सब्सटेंसेस आयोडीन हबो कैंफर हबो अमोनियम क्लोराइड हबो सेम जिंस सब एथरे बेसी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आसला बडे नाही सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन वाला इक्विलिब्रियम में देखिबा सॉलिड इन लिक्विड फॉर एग्जांपल ए इक्विलिब्रियम रो एग्जांपल होची सुगर चीनी को जदि आम पानी रे मिसाइले तो सही केस रे सुगर जो सॉल्यूशन रे प्रेजेंट अछि और जो सुगर सॉलिड है कि प्रेजेंट अछि से दि जण भितर इक्विलिब्रियम रहबो कमिदिया इक्विलिब्रियम जतले सॉलिड सुगर डिजोल्व है कि सॉल्यूशन भितर जाए सेतेबेले सेटा कहबो रेट ऑफ डिजोल्यूशन और जतले सॉल्यूशन भितर बाहर को आसी फिर सॉलिडिफाई जाए सेटा कहबो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एटा भी हम काली पढ़थिले रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिजोल्यूशन सेम जतले हे जिवो सेतले हम कहबा कि इक्विलिब्रियम अटेन हे
गैस इन लिक्विड, गैस रो डिसोल्यूशन लिक्विड रे। फॉर एग्जांपल होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जतरा में डिसॉल्व करबा पानी रे सेतबेले कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्यूशन भितर भी सेमिति इक्विलिब्रियम आसो। आ गैस डिसॉल्व हो जतरा लिक्विड रे एमिति इक्विलिब्रियम सब बडे फॉलो करे हेनरीज लॉ को। मन रखो एमिति इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कोन को? हेनरीज लॉ में काली पड़ती सॉल्यूशन से कहे कि द स्टेट्स, it states that mass of a gas which is dissolved in a mass of a solvent at any temperature is proportional to its pressure of the gas above the solvent। तो केते हबो सही गैस और सॉल्युबिलिटी से लिक्विड रे गोटे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे केते अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व करिवो सही सेटा डिपेंड करे सही गैस रो पार्शियल प्रेशर केते अछि सही लिक्विड रो सरफेस ऊपर। यदि अधिका पार्शियल प्रेशर अछि अधिका डिसॉल्व करिवो। एडा ही हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ही गवर्न करे गैस एंड लिक्विड रो डिसोल्यूशन वाला इक्विलिब्रियम को। तो एठी हमें पांचटा पॉइंट चारटा पॉइंट समराइज कर परिबा कि सॉलिड और लिक्विड जतरे सॉलिड लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम से गोली गोटे टेंपरेचर एग्जिस्ट करे जतरे दीटा जाक फेज एग्जिस्ट कर परंतु सेटा होची तार मेल्टिंग पॉइंट बा फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड पेपर इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर सब बड़े गोटे कांस्टेंट रहबो गोटे गिवन टेंपरेचर रे। और टेंपरेचर जतरे कांस्टेंट हबो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रो वेपर प्रेशर सब बड़े कांस्टेंट रहबो। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर। मतलब ଯେତେବେଳେ ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ରେ ଡିଜଲ୍ଭ ହବ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଗୋଟେ गिवन टेम्परेचर ରେ ସବୁବେଳେ कन्स्टांट हबो। हम जानछे ଯଦି ଆମେ टेम्परेचर इंक्रीज କରିବା सॉल्युबिलिटी बढ़िबो काहेकि टेम्परेचर इंक्रीज कले काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो तो मोर कोलिजन हबो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स भितरे से जोगु डिसोल्यूशन बढ़िबो। डिसोल्यूशन ऑफ गैस जेतेବେଳେ लिक्विड रहबो कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एटा ही हेनरीज लॉ। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। वन गोटे सेटा सबुठ इंपोर्टेंट। क्लोज सिस्टम रे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हबो, ओपन सिस्टम रे इक्विलिब्रियम कबे अटेन ही परिबनी। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट। दीटा जाक अपोजिंग प्रोसेस सेम रेट रे हेथिबा दरकार और डायनामिक कंडीशन हबा दरकार, स्टेबल कंडीशन नहीं होला। सॉरी डायनामिक भी हवा दरकार, स्टेबल हवा दरकार, स्टैटिक हवा दरकार नहीं। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सब प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहे इक्विलिब्रियम रे। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by a constant value of one of its parameters at a given temperature। The equilibrium सबोड़े characterized by constant value of parameter। सब parameter से टाइम रे constant है जो खाली rate of forward equal to rate of backward reaction। Magnitude of such quantities at any stage indicates that the extent to which the physical process has proceeded before reaching the equilibrium। एटा में रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ला बेले डिस्कस करिया। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ तो अबे केमिकल इक्विलिब्रियम का मैं आसले एठे भी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जतरे रेट इक्वल हबो सेतरे हम कहबा इक्विलिब्रियम अटेन हे वाला। देखो एठे ए और बी रिएक्टेंट्स होतनी, सी और डी प्रोडक्ट्स होतनी। तो टाइम सहित रिएक्टेंट्स रो कंसंट्रेशन केमिति कमी कमी जाला और टाइम सहित प्रोडक्ट्स रो कंसंट्रेशन बढ़ी गला। गोटे पॉइंट आसला जतरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेतिक रे ही स्टैटिक है गले तो सही केस रे इक्विलिब्रियम अटेन है होला। तो एग्जाम रे एमदियर केमिदिया क्वेश्चन आसीबो ए ग्राफ टा दे देबो से पचारिबो ए ग्राफ टार एक्सिस कोन कोन हबो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ना रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस गोटे जिंस मन रखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ तीन प्रकार है परियो। गोटे एटा जोटा देछि आ गोटे एटा है परियो आ गोटे एटा भी है परियो। बुझलो ये तीन प्रकार है परियो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। बट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ सब बड़े एटा हबो बिकॉज इक्विलिब्रियम रे रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रो सब बड़े इक्वल हबो। बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हबा जरूरी नहीं। ओके देखो इट इज इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3s2 एमोनिया फॉर्मेशन रे इक्विलिब्रियम रे इट इज ए ग्राफ देछि। मोलर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम नहीं है।
तो ऐसे लिखी chemical reactions reach a state of dynamic equilibrium in which the rates of the forward and reverse reactions are equal and there is no net change in the composition. ହେଲା composition ଆଉ ଯେତେବେଳେ change ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ composition change ହେବା ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ reactions ର एपट रिएक्शन की सेपट रिएक्शन कोटा भी अधिका रेट रे कम रेट रे होनी दीटा जगह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट रे होछन सेतेबेले हमें कहबा इक्विलिब्रियम अटेन होना chemical equilibrium in the reaction H2 plus I2 gives us to 2HA can be attained from either direction अब हम मन रखेगा कि इक्विलिब्रियम सबबड़े रिएक्टेंट साइड रे होबो एटा जरूरी नै either साइड रे परिबो जदि हम रिएक्टेंट्स नेबा तो से प्रोडक्ट्स फॉर्म करी इक्विलिब्रियम अटेन करबा प्रोडक्ट्स नेबा तो प्रोडक्ट्स रो रिवर्स रिएक्शन नेगी रिएक्टेंस आसो इनिशियली रिवर्स रिएक्शन बेसी जोर रे हबो फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे हबो धीरे धीरे रिवर्स रो रेट कमिबो फॉरवर्ड रो रेट बढ़िबो जमे जमे रिएक्टेंट्स रो कंसंट्रेशन बढ़िबो फाइनली गोटे पॉइंट रे दीटा जगह रेट इक्वल हे जिवो इक्विलिब्रियम अटेन हे जिवो गोटे जदि हम इक्वेशन लिखबा a plus b equal to c plus d तो तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केमे लिखबा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखया पे concentration of c into concentration of d by concentration of a into concentration of b लिखया एडो काज इक्विलिब्रियम इक्वेशन where kc is the equilibrium constant हला एटा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आल्सो कहा जाय लॉ ऑफ मास एक्शन So at a given temperature, the product of concentration of reactant reaction products raised to respective stoichiometric coefficient in a balancing equation divided by product of concentration of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients as a constant value. This is known as equilibrium law, law of chemical equilibrium. So equilibrium law by law of chemical equilibrium कहूची कि जो भी chemical reaction ପାଇଁ equilibrium state रे concentration of product raised to तार stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant to the power of individual stoichiometric coefficient ऊपर रहेगा प्रोडक्ट मानकर मल्टीप्लिकेशन तळे रहेगा रिएक्टेंट मान मल्टीप्लिकेशन सब जगह इंडिविजुअल निजर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रो पावर को रेज हेबे सेई जो वैल्यू आसीबो सेडा होची इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होला फॉर एग्जांपल एटा देछि देखो एक्चुअल a plus b c d तो it जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है c to the power c into d to the power d by a to the power f into b to the power b है सिमिलरली ए रिएक्शन पे एमदी सेम वे रे हम लिख परिया the equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant for reaction in forward तो जदि हमें एठी रिएक्शन कोन अछि H2 gaseous रु I2 gaseous H2 gaseous I2 gaseous में से 2HI gaseous मिलला आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची Kc that is x तो जदि हमें ई रिएक्शन टा को रिवर्स कर देबा 2HI gaseous रु H2 gaseous I2 gaseous तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 by x जीवो 1 by k से जीवो जतने हम रिएक्शन को उल्टा करिवा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नुवा रिएक्शन पे इनवर्स ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन हे जो तो एटी तीनटा से देछि रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स जतने गोटे नॉर्मल रिएक्शन नि आछि a plus bb ccdd नियाला सतले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जदि kc आसला जतने से रिएक्शन को रिवर्स करला त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 by kc आस जो और जतले सब जगह रे गोटे नुवा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड कर देबा होल रिएक्शन रे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई कर देबा सेही कोएफिशिएंट ता जाय कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे पावर हे जिवो और नुवा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमो मिलबो तो जेतने में n मल्टीप्लाई कर देले पूरा रिएक्शन रे तो नुवा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची kc टू द पावर n हे होला दैट इज द क्वेश्चन देखा फॉलोइंग कंसंट्रेशंस आर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin N2 एतिके H2 एतिके NCSC भी अल्टरनेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑब्वियसली कोन हबो फर्स्ट हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखया पे गोटे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखया पड़े बैलेंस्ड इक्वेशन रे कोन होची एंड बैलेंस्ड इक्वेशन लिखि दे हमको जाना पड़िबो निरंक मानको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते तो सही अकॉर्डिंग हमें कंसंट्रेशन रे पावर डिनोट कर परिया तो Kc इक्वल टू NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 into H to the power 3 आसला एठी जतन हमें वैल्यू यूज करले तो 1.06 into 10 to the power 3 आसला नेक्स्ट क्वेश्चन होची एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस ऑफ N2O2 and NO देची Kc ऑफ द रिएक्शन कोन हबो रिएक्शन से एटे प्रोवाइड कर देची तो अगेन Kc इक्वल टू हबो NO
ର concentration to the power 2 divided by O2 ର concentration into the concentration, ତ ସେଇଠୁ ଆମକୁ value ମିଳିଗଲା। अब homogeneous equilibrium कौन? homogeneous equilibrium होची ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ reactants ଆଉ product ଗୋଟେ single phase ରେ ଗୋଟେ single state ରେ exist କରିବେ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ single phase ରେ exist କରିବେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ homogeneous equilibrium। ଏଠି ସବୁ ଯାକ gas ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଯାକ aqueous ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ homogeneous equilibrium। तो ଯେତେବେଳେ ଖାଲି gaseous system ରହିବ ମାନେ homogeneous equilibrium ରେ ଖାଲି gases ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ equilibrium constant କୁ ସେଠି ଆମେ introduce କରିପାରିବା, ସେ ହଉଛି Kp। Kc ରେ କଣ ନିଆହଉଛି, ସବୁ concentration ନିଆହଉଛି, Kp ରେ ସବୁ partial pressure ନିଆହବ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ mainly gases ରହିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ reaction ଅଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, concentration କାହିଁକି partial pressure ସହିତ directly proportional ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ constant temperature ରେ pressure of the gas is proportional to its concentration। କେମିତି ହେଲା ଜଣା ପଡିଲା, PV equal to nRT ଆମେ ଜାଣିଛେ, तो P is equal to nRT by V ହେଲା। तो ଯଦି T constant ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ R constant, N by V କଣ, N by V ତାର concentration କି ନାହିଁ, number of moles per unit volume, ଏଇଟା ହିଁ ତାର କଣ molarity, ଆଉ molarity को ही concentration କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା କି ଯଦି temperature constant ରହୁଛି partial pressure is proportional to concentration of the gas। ଦେଖ partial pressure proportional to concentration of the gas ଆସିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ concentration ଜାଗାରେ partial pressure को भी नहीं परिया, और नया equilibrium constant Kp कैलकुलेट करि परिया। एई इक्वेशन केस रे हमको Kc इक्वल टू Kp मिलला, बट सेटा सब बडे हबो बोली जरूरी नहीं। एक्चुअल फार्मूला होची Kp इक्वल टू Kc टू द पावर Kc into Rt to the power del Ng। del Ng कोन, टोटल नंबर ऑफ gaseous moles of product minus total number of gaseous moles of reactant। नंबर ऑफ gaseous product केते मोल अछि और gaseous reactant केते मोल अछि तार डिफरेंस होछि del Ng। del N ना लिखि del Ng लिख, तो तुम मन रहबो कि एटा gaseous moles करियार अछि और टोटल मोल्स नै। तो Kp इक्वल टू Kc into Rt to the power del Ng हला हमर इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन Kc और Kp। Method question देखिए, for the equilibrium to NaCl gases is as to 2NO gases plus Cl2 gaseous, value of the equilibrium constant Kc रो देछि, Kp रो वैल्यू से पचास, तो Kp इक्वल टू कम हो Kc 3.75 into 10 to the power minus 6 into Rt 1069 into R होछि 8 फर्स्ट में देखिए अभी को वैल्यू रे से हमको देछि। तो मन रखो केपी सबले जेतले हम केपी रो वैल्यू कैलकुलेट करछे, प्रेशर सबले बार रे एक्सप्रेस हवा दरकार, बिकॉज़ स्टैंडर्ड स्टेट फॉर प्रेशर इज 1 बार। एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रखो, जेतले हम केपी रो वैल्यू कैलकुलेट करछे प्रेशर सबले बार रे कैलकुलेट हवा दरकार, बिकॉज़ स्टैंडर्ड स्टेट फॉर प्रेशर होची 1 बार। तो बार रे जदी प्रेशर हम नेबा तो हमर आर रो वैल्यू केते आसीबो 0.0821 आसीबो कि नै, काहे कि ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁ ନ୍यूटन पर मीटर स्क्वायर नउतले सेतेବେଳେ 8.314 आस्तला, ଯେତେବେଳେ ଆମେ बार रे नेबा ସେତେବେଳେ 0.0831 ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ एटमॉस्फेयर रे नेबा 0.0821 ଆସିଯିବ, ତ ଏଠି 0.0831 into 1069 into एति कराला टू द पावर del Ng। del Ng केते अछि, एपटे 1 मोल गैस 2 मोल गैस, एपटे 2 मोल गैस, तो 3 minus 2 1 mole gas, the answer is 0.033। okay, now we heterogeneous equilibrium देखिए, equilibrium in a system having more than one phase is called heterogeneous equilibrium। तो homogeneous equilibrium सेतेବେଳେ एटा नबो जेतेବେଳେ सब जाक reactants of products गोटे phase रे थिबे बा गोटे state रे थिबे, heterogeneous रे multiple states रे थिबे। heterogeneous equilibrium रे pure solid और pure liquid ର concentration को 1 रखा हबा सबବେଳେ, काइना समान concentration change हुआनी। In our heterogeneous equilibrium example, तो एटी से लिखी कि जदि गोटे substance X involve होइछ से X solid बा liquid माने pure solid बा pure liquid, ओके, से दिटा को सब बड़े constant रखा हबो
and amount of x ଯେତେ ନେଲେ ବି ସେଥିରେ constant ରଖା ହବ। ତ ଯଦି ସେ gaseous ଅଛି ବା aqueous ଅଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର value ଆମେ actual ପକେଇବା, but ଯେତେବେଳେ ସେ solid ଅଛି ବା liquid ଅଛି ତାକୁ constant ନିଆହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର concentration change କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ 1 ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଯେମିତି solid ରୁ solid ଆଉ gas ଆସିଲା, ଏଠି Kc ର value ଏଠି solid gas solid, ତ gas comparison ରେ solid liquid ସବୁବେଳେ constant, ତାର net value ଏଇଟା ଆସିବ। सॉलिड जगह सब रिमूव कर देबा, इक्वेशन रे खाली गैसियस रहबो, kpr हबो pco2 बिकॉज़ पार्शियल प्रेशर सॉलिड और लिक्विड रो किछि न थाए। हला नेक्स्ट हम देखियो कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव अटेन्ड कांस्टेंट वैल्यू। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केतेबेले डिफाइन हबो, सेतेबेले डिफाइन हबो बा सेतेबेले एप्लीकेबल हबो जेतेबेले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गोटे कांस्टेंट वैल्यू अटेन्ड कर दिचंदी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच जायछि, सेतेबेले ही हमें एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करि परिया बा अप्लाई करि परिया। Value of equilibrium constant is independent of initial concentration of reactants and products. Equilibrium constant ର जो value ଅଛି ସେଟା initial concentration of reactants और products ଉପରେ depend करनी। तो equilibrium constant खाली गोटे ही जिनस ଉପରେ depend करे, एटा मन रखा ଗୋଟେ important question। equilibrium constant खाली temperature ଉପରେ depend करे, ଆଉ କୋଉ ବି ଜିନିଷ change ହେଲେ equilibrium constant change ହବନି। equilibrium constant ସେତେବେଳେ change ହବ ଯେତେବେଳେ temperature change ହବ। Equilibrium constant is temperature dependent, having one unique value for a particular reaction। देखिलो आड़े at a given temperature, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ given temperature ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଗୋଟେ unique value ରହିବ for a particular reaction। ଗୋଟେ unique temperature ରେ ଗୋଟେ unique reaction ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ unique value ରହିବ, ଆଉ କିଛି change କଲେ ସେ change ହବନି। ଗୋଟେ particular reaction ପାଇଁ ତାର value ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ particular temperature ରେ constant ରହିବ। ତ temperature ଛଡା ଆଉ ଯାହା ବି change କଲେ equilibrium constant change ହବ ନାହିଁ। Next होची equilibrium constant K for reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction। तो एटा हमें जानिले जदि किछि गोटे मल्टीप्लाई ହେଇची कोफिशिएंट तो सेटा तार पावर रे चली जिवो, आ जदि रिवर्स रिएक्शन नेछि तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे इनवर्स आसीबो। जदि Kc greater than 10 to the power 3 products predominate over reactants, बेसी फॉरवर्ड रिएक्शन ହେଇची ता अर्थ F10 हवा आगुर इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट सेट बेसी फॉर्म ହେଇछन्ती। Kc जदि लेस देन 10 to the power 3 रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट करिवे माने रिएक्शन बेसी प्रोसीड करिनी, रिएक्शन स्टार्टिंग रो स्टैग्नेट हो जायछि। जदि Kc एटा म तुमको स्टार्टिंग रे कहथि 10 to the power -3 10 to the power +3 भितर रहइबो, then equilibrium रे appreciable concentration of both reactant और product present अछन्ती। हेलो नेक्स्ट टाइम देखिया कि रिएक्शन क्वेश्चन कोन। रिएक्शन क्वेश्चन Q को हमें डिफाइन करिया कि सेम वे रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे जेमिति हमें फार्मूला लिखुछे, रिएक्शन क्वेश्चन रो फार्मूला भी सेमिति आइ लिखा जिवो। खाली डिफरेंस एति कि जे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम अटेन हले डिफाइन करे जे, बट रिएक्शन क्वेश्चन को भी पॉइंट रे डिफाइन हे परियो। रिएक्शन क्वेश्चन Q होची मन रखो Kc सेतरे डिफाइन हबो जेतरे इक्विलिब्रियम अटेन हबो, बट रिएक्शन क्वेश्चन Q डिफाइन करिया पे नॉट नेसेसरी दैट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम छडा को भी पॉइंट रे हम जदी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मानो कंसंट्रेशन बा पार्शियल प्रेशर को नेबा त हम रिएक्शन क्वेश्चन कैलकुलेट कर परिया। तो QC रो डायरेक्ट फार्मूला जी सही सेम C टू द पावर C into D to the power D by A to the power A into B to the power B। डिफरेंस बस एति कि कंसंट्रेशन को भी कंसंट्रेशन हे थाई पारे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हेबा जरूरी नहीं। जदि QC Kc रो बड़ा आसला त अर्थ रिएक्शन रिएक्टेंट मानक डायरेक्शन रे जिवो, दैट इज रिवर्स रिएक्शन बेसी हबो। जदि QC Kc रो छोटा आसला माने रिएक्शन अब नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड रे जिवो, फॉरवर्ड रिएक्शन बेसी हबो। और जदि QC इक्वल टू Kc आसला रिएक्शन मिक्सचर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम रे अछि। सेम जिंस एटे भी लिखा अछि QC Kc रो छोटा हला नेट रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जिवो, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन हबो। QC Kc रो बड़ा हला राइट टू लेफ्ट जो, दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन बा रिएक्टेंट बेसी फॉर्म हबे। और QC इक्वल टू Kc हले इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अटेन हो अछि। एटा एक क्वेश्चन अछि, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2a to the power 2a gives b plus c is 2 to 10 to the power -3 at the given time। composition of reaction mixture is A equal to B equal to C equal to 3 into 10 to the power -4।
In which direction the reaction will proceed? The reaction co-direction will proceed करियो. For the reaction quotient QC is given by B into C by A square हबो. तो से केस रे हम QC रो वैल्यू काट देले 3 into 10 to the power minus 4. बट एटा KC रो वैल्यू देछि 2 into 10 to the power minus 3. तो QC एठी QC असला एठी 1 देखो A B C तीनटा 3 to the power minus 4 बोल देछि. तो QC एठी 1 आसी गला बट KC देछि 2 into 10 to the power minus 3. तो QC एठी KC रो बड़ा होला. QC एठी KC रो बड़ा होला माने प्रोडक्ट माने बेसी अछन. तो सेटा को सबले नलिफाई करिया पे सिस्टम को रिएक्टेंट साइड रे रिएक्शन बेसी हबो. रिएक्टेंट साइड रे रिएक्शन बेसी हेले बैकवर्ड रिएक्शन बेसी हबो. ओके नेक्स्ट टाइम देखिया रिलेशन कोन अछि गिब्स फ्री एनर्जी सहित इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जदि हम जानछि डेल जी नेगेटिव होला तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हबो. फॉरवर्ड रिएक्शन जेबो जो डेल जी पॉजिटिव हबो तो रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हबो. हैना डेल जी जतो 0 हबो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करछि. तो नॉर्मली गोटे इक्वेशन अछि कि डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आरटी ln क्यू. एटा होछि बेस रिएक्शन. मन रखो एटा होछि बेस इक्वेशन. ए इक्वेशन रो सब इक्वेशन काली जे हम पढिथिले थर्मोडायनामिक्स रे से सब इक्वेशन डिराइव हुए. एटा होछि बेस इक्वेशन डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आरटी ln क्यू. क्यू कोन एठी रिएक्शन कोफिशिएंट. इक्विलिब्रियम केस रे कोन हबो जेतले इक्विलिब्रियम अटेन हेछि डेल जी इक्वल टू 0 हो जिवो. डेल जी इक्वल टू 0 हो जिवो और इक्विलिब्रियम हम जानछि इक्विलिब्रियम रे रिएक्शन कोसेंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जाए. तो डेल जी 0 हो गला और क्यू रो वैल्यू के सी हो गला बा के हो गला. तो एई केस रे कोन हबो डेल जी इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आरटी ln के हला. क्यू रो वैल्यू के होला. एई केस रे हमको डेल जी नॉट रो वैल्यू मिलला माइनस आरटी ln के. डेल जी नॉट होची माइनस आरटी ln के बा ln के होची माइनस डेल जी नॉट बाय आरटी बा के रो वैल्यू होची e टू द पावर माइनस डेल जी नॉट बाय आरटी. ना एंटी लॉग यूज करिए हम कैलकुलेट कर. नेक्स्ट कोची कोन कोन फैक्टर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करंती. हम जानछि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जे अछि से इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट. तो एई केस रे हम कोन अप्लाई करबा ली चार्टलेस प्रिंसिपल. ली चार्टलेस प्रिंसिपल विषय हम काली पढथिले सॉल्यूशंस रे कोड पढथिले. जदी डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक देन टेंपरेचर बढ़ले डिसोल्यूशन कम होबो. डिसोल्यूशन जते एंडोथर्मिक टेंपरेचर बढ़ले अधिक होबो. तो सेटा ही लिखा जायछि change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counter the effect of the change. तो जो भी change गोटे equilibrium state रू डेविएट करिया पय हबो रिएक्शन सबोले गोटे एमिदिया चेंज आनिबो जोटा सेही प्रीवियस चेंज को नलिफाई करिवो बा तार इफेक्ट को मिनिमाइज करिया पय चेष्टा करिवो. ओके ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हम जानछे जदि रिएक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ला तो फॉरवर्ड रिएक्शन बेसी हो. रिएक्टेंस कंसंट्रेशन कम मिले बैकवर्ड रिएक्शन बेसी हो. सिमिलरली प्रेशर रो जदि हम करबा सही डी चार्टलेस प्रिंसिपल अप्लाई हो. बट प्रेशर को जिंस पे अप्लाई हो प्रेशर सब बड़े गैस पे अप्लाई हो. कोन केमिदी प्रेशर केमिदी गैस ऊपर अप्लाई हो काहेकि जदि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हमने रही नहीं छे रिएक्टेंट रे बा प्रोडक्ट साइड रे तो सेही केस रे प्रेशर इंक्रीज हवार किछि मतलब नै. प्रेशर इंक्रीज हले कोनटा फायदा हला किछि फायदा हला कहीं बिकॉज सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल. बट जदि हम गैसियस रिएक्टेंट्स नै छै तो सेही केस रे प्रेशर बढ़िले गैसियस रिएक्टेंट नेले हमें गैसियस प्रोडक्ट नेले प्रेशर इफेक्ट रहे गैस ऊपर कहना गैस माने कंप्रेसिबल. तो जदि हम ए इक्वेशन कंसीडर करिया पड़े 1 मोल प्लस 3 मोल 4 मोल गैसेस अछन ए पड़े 2 मोल गैसेस अछन. तो ए केस जदि हम प्रेशर को इंक्रीज करिया एक्सटर्नली रिएक्शन चाहिबा कि प्रेशर डिक्रीज करू. प्रेशर डिक्रीज कर माने फॉरवर्ड रिएक्शन हो ताकि 4 मोल गैस रु 2 मोल गैस हो माने नेट पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करू. तो एटा भी डिसऑर्डर्स प्रिंसिपल डिपेंड करला. इनर्ट गैस एडिशन कोन if the volume is kept constant जदि वॉल्यूम से रिएक्टेंट रो क्लोज वेसल रो ऑब्वियसली कांस्टेंट अछि then
जदि आम गोटे इनर्ट गैस ऐड भी करेंगे तो तार किसी फायदा हबनी, इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहबो। जदि वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखी गोटे इनर्ट गैस ऐड करछे, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट और इनर्ट गैस ऐड करछे, सपोज आर्गन बा जेनॉन जोड़ा भी सीए रिएक्शन ऑब्वियसली पार्ट में कहना से इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहबो। इट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन दैट inner gas at constant volume does not change the partial pressure or molar concentration। तो हम constant volume रे inert gas add करिवा, partial pressure और molar concentration of reactants और products change होनी, ସେଥିପାଇଁ equilibrium state भी change होनी। Effect of temperature change देखो, general temperature change टेम्परेचर चेंज हेले कोनटा चेंज हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज ऊपर केमिति डिपेंड करे, सेटा डिपेंड करे डेल एच ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव अछि ना नेगेटिव अछि। तो जदि गोटे इक्विलिब्रियम जदि गोटे रिएक्शन एक्सोथर्मिक अछि बट डेल एच नेगेटिव अछि, से केस रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करिवो जतरे टेम्परेचर इंक्रीज करिवो। कहीं जानछे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जदि अछि माने हीट टा प्रोडक्ट साइड अछि त टेम्परेचर बढ़ेले हम हीट प्रोवाइड करछे, तो से चाहे कि हीट डिक्रीज करू तो रिएक्टेंट साइड रे इक्वेशन बेस जीव, रिएक्टेंट साइड रे इक्वेशन गले बैकवर्ड रिएक्शन बेस चला, बैकवर्ड रिएक्शन बेस चले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होला। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन अछि हीट टा रिएक्टेंट साइड अछि त हम जते अधिक टेम्परेचर करिया से चाहे कम तो प्रोडक्ट साइड जीव, प्रोडक्ट साइड रे गले बेसी प्रोडक्ट फॉर्म हो, बेसी प्रोडक्ट फॉर्म होले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टा बढ़िबो। तो एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक में जो टेम्परेचर इंक्रीज करिवो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम मिलबो। Effect of catalyst, catalyst कौन करे, catalyst increases the rate of chemical reaction by making available a new and a low energy pathway for conversion of reactant to product। तो catalyst रो काम होनो, catalyst रो काम होची से rate of chemical reaction को increase करिवो, केमिति गोटे नुआ लो एनर्जी रिक्वायरमेंट वाला पाथवे से प्रोवाइड करिवो। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट माने इट इज एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करला। तो कैटलिस्ट रो बेसिक काम होची से केमिति एक्ट करे, कैटलिस्ट करे एक्टिवेशन ऑफ जो एक्टिवेशन एनर्जी सेटा को कम कर दिए। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे, गोटे नुआ लो एनर्जी पाथवे से प्रोवाइड करिवो, जा मीनिंग होची से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को कमे दबो, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इजीली फॉर्म हो पारियो। सिमिलरली प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स भी इजीली फॉर्म हो पारियो। तो कैटलिस्ट बोथ साइड डायरेक्शन रे रिएक्शन जो अछि दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दीटा जाक रिएक्शन को इक्वली कैटलिस्ट जो अछि से एनहांस करिवो रेट ऑफ रिएक्शन को। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट कौन करे, कैटलिस्ट खाली अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को फास्टर करे दिए, जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम रे हम पहुंच जिबा, बट से इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करेनी, कहीं ना से फॉरवर्ड रिएक्शन को जति एनहांस करे बैकवर्ड रिएक्शन को भी सेति एनहांस करे। सेति में इक्विलिब्रियम स्टेट किछ इफेक्ट हुएनी, खाली इक्विलिब्रियम टा जल्दी अटेन हो जाए। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और रिएक्शन रो सेम अमाउंट रे लोअर करे, सेम रेट इंक्रीज करियो। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, देखो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करेनी कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को अफेक्ट करेनी। सेटमेंट को हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो फार्मूला रे लिखिवानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन रे लिखिवानी, यानी कैटलिस्ट रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करेनी, खाली रिएक्शन को एनहांस करिवारे हेल्प करे। ହେଲା तबे किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिया। क्वेश्चन नंबर 1 हम करवानी, क्वेश्चन नंबर 1 काहे करवानी बिकॉज़ बफर हम पढ़ेने, ब्रोंस्टेड एसिड भी हम पढ़ने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ेने। एटा लिखिछि चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। क्वेश्चन अछि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। तो एई भितरु कोटार वॉल्यूम चेंज करले इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़िबो नाही।
सेही केस रे पड़िबनी जो केस रे दीपट जाक गैस सेम अछि दीपट जाक जदि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम अछि सेही केस रे वॉल्यूम चेंज कले इक्विलिब्रियम इफेक्ट पड़ेनी एपटे 1 2 अछि एपटे 4 2 अछि ए केस रे 1 2 अछि तो ए केस रे दीपट जाक रे 2 मोल्स ऑफ गैस अछि तो 4 रे हो जो केस रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट सेम है जो सेही केस रे वॉल्यूम चेंज करले इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़िबनी ठीक अछि ए रिएक्शन रे Kp by Kc रो वैल्यू कोन हम जानछे Kp इक्वल टू Kc into RT to the power del Ng तो Kp by Kc रो वैल्यू आसीबो RT to the power del Ng ए केस रे del Ng केते राइट साइड रे कार्बन डाइऑक्साइड रो 1 मोल अछि माइनस लेफ्ट साइड रे हाफ मोल ऑक्सीजन माइनस 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो -1/2 तो RT to the power -1/2 होची राइट आंसर which of the following statement is not true ଭିतरु को statement टा ठीक नुह pH plus POH equal to 14 for all aqueous solutions एटा ठीक कथा pH of 1 into 10 to the power minus 8 molar HCl 8 हो एटा भूल HCl गोटे एसिड आ तार pH केबे भी 7 रो अधिका हेई परिबो नाही ओके सेटा सब गोडे 6.97 बा 6.95 एमडी किछ आसीयो 7 रो तळे रहबा 8 बिल्कुल हवन solubility product हम पढ़े तो यही क्वेश्चन करिया for the reaction equilibrium N2O for gaseous gives us to 2NO2 concentration एति दे देछि value of Kc केते हो value of Kc पई NO2 रो partial pressure NO2 रो concentration to the power 2 होबो that is 1.2 into 10 to the power minus 2 into 1.2 into 10 to the power minus 2 divided by 4.8 into 10 to the power minus 2 होबो 10 to the minus 1 2 गला और 4 गला 0.3 into 10 to the power minus 2 by 3 into 10 to the power minus 3 होची right answer 8 रो B है ना now consider the reaction equilibrium 2SO2 gases plus O2 gases रो 2SO3 gases है ना del H देची negative मानला exothermic reaction on the basis of Lee Chatelier's principle condition favorable for forward reaction केते बड़ा हबो increasing temperature as well as pressure टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर देखो जदि हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करबा एटा गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने हीट टा एटे कोन अछि हीट टा एपटे प्रोडक्ट साइड रे अछि माने जदि टेम्परेचर इंक्रीज करिया तो हीट को कम करिया में बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो जोड़ जोड़ टेम्परेचर इंक्रीज वाला देछि सेटा हमें काटे देबा इंक्रीजिंग टेम्परेचर हबनी एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हबनी तो लोअरिंग द टेम्परेचर ठीक हो बट प्रेशर एटे कोन हबो एपट साइड गला रिएक्टेंट साइड रे 3 मोल्स ऑफ गैस अछि बट प्रोडक्ट साइड रे 2 मोल्स ऑफ गैस अछि माने नेट प्रेशर जदि हमें इंक्रीज करिवा प्रेशर जदि इंक्रीज करिया से प्रेशर को डिक्रीज करिया पई 3 मोल्स रु 2 मोल साइड को अधिका हो तो प्रेशर इंक्रीज करने फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसी हो तो लोअरिंग द टेम्परेचर आउ increasing the pressure when rain is accompanied by thunderstorm एटा भी नहीं conjugate base of H2PO4 minus H conjugate base कोन conjugate base रो मीनिंग होची गोटे H प्लस जेतोर से एक्सेप्ट करनबो गोटे conjugate base सब बोले गोटे एक्स्ट्रा H प्लस थाए गोटे H प्लस जदि एक्सेप्ट करियो H3PO4 हबो ना नहीं हम नहीं conjugate base सब बोले गोटे H प्लस कम रहबो माने ये जदि गोटे आर conjugate base केतळे आसबो जेतळे ये गोटे एसिड भले एक्ट करियो एसिड माने गोटे H प्लस प्रोवाइड करियो माने HPO4 2 माइनस हबो which of the equilibrium expression for the reaction ए भितर equilibrium ए reaction equilibrium कोडा हबो देखो एटा गोटे heterogeneous equilibrium माने प्योर सॉलिड जोटे अछि और प्योर लिक्विड जोटे अछि सेमानर कंसंट्रेशन 1 निया हो तो खाली एटा ही रहइबो हमर इक्वेशन रे एटा हबनी तो एटा भी रिएक्टेंट साइड रे अछि माने डिनोमिनेटर रे आरो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 माने पावर 5 हबो तो एटा हबो आंसर फॉर द रिएक्शन Kp by Kc केते हबो del n 0 वैल्यू केते अछि del n 0 वैल्यू अछि 1 माइनस ये प्रोडक्ट साइड रे 1 माइनस रिएक्टेंट साइड रे 1 माइनस 1 तो -1 तो RT 1 by RT equilibrium constant for the reaction N2 plus O2 gives us to NO2 at temperature T हो जेति की value of Kc for the reaction at the same temperature देछि
ओके सेम टेम्परेचर रे ए रिएक्शन रे वैल्यू केते हो देखो एथिरे नेट रिएक्शन डा जो आसीची सेडा फर्स्ट रे होल ए जो ओरिजिनल रिएक्शन छी ओरिजिनल रिएक्शन सहित होल ओरिजिनल रिएक्शन सहित 1/2 मल्टीप्लाई करा जायछि माने केसी रो वैल्यू फर्स्ट कोन हबो केसी टू द पावर 1/2 हबो तापरे से रिएक्शन टाକୁ रिवर्स कर दिया जायछि माने इनवर्स हे जिवो माने 1/kc टू द पावर 1/2 हबो नुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो तार वैल्यू हो 1 by root over of 4 into 10 to the power minus 4 that is 1 by 2 into 10 to the power minus 2 that is 100 by 2 that is 50 तो 14 रो B हो आंसर molar solubility of a sparingly soluble solid एटा पढ़िने degree of dissolution पढ़िने solubility product पढ़िने एटा हम कर परिया एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन अछि del H नेगेटिव अछि which of the following increases the quantity of CaF3 increases the quantity of CaF3 माने बेसी फॉरवर्ड रिएक्शन दरकार हमको फॉरवर्ड रिएक्शन केते बडा हबो एडिंग F2 obviously जतला हम F2 ऐड करिया तो F2 कमे पे फॉरवर्ड रिएक्शन हबो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम वॉल्यूम जदि हम बढ़ेबा से वॉल्यूम को कमेबा को चाहिबो वॉल्यूम को कमेबा को चाहिले बैकवर्ड रिएक्शन हबो देखो जदि हम वॉल्यूम को बढ़ेबा माने प्रेशर कम माने से प्रेशर को बढ़ाया पे चाहिए प्रेशर को बढ़ाया पे चाहिए बैकवर्ड रिएक्शन तो फर्स्ट ऑप्शन होची करेक्ट for the reaction 2NO2 is equals to 2NO plus O2 when Kp and Kc are compared at 184 it is found that Kp by Kc केते आसीबो RT to the power del Ng एटा केते del Ng एटा 1 कैन राइट साइड रे प्रोडक्ट साइड रे 3 मोल्स और रिएक्टेंट साइड रे 2 मोल्स गैस अछि माने Kp by Kc आसीबो RT तो सेटा ऑब्वियसली RT रो वैल्यू टा 1 रो अधिक आसीबो ना 1 रो कम आसीबो कैलकुलेट करले हमहु जणा पड़छि Kp ग्रेटर देन Kc आछि काइना Kp by Kc रो वैल्यू आसीबो 457 केल्विन into 0.0831 सेटा 1 रो अधिक आसी 1 रो अधिक आसी माने Kp is greater than Kc हाइड्रोजन आयन concentration in mole per liter in solution of pH 5.4 एटा पर देखिया conjugate base of OH minus conjugate base माने एसिड भला काम करियो गोटे H plus को दे दो माने O2 minus सब राइट आंसर amount of solid is placed in a flask से कोची की amount of solid NH4HS को already containing ammonia gas at a certain atmosphere pressure रखा था ammonium hydrogen sulfide decomposes to yield NH3 and H2S NH4HS डिकम्पोज करला ये गोटे सॉलिड सी डिकम्पोज करला देटा गैस रे NH3 गैस प्लस H2S गैस हला से कहछि कि इनिशियली ऑलरेडी से फ्लास्क रे किछि एमोनिया अछि तो तार प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर अछि माने टाइम इक्वल टू 0 रे आ जो पार्शियल प्रेशर तो ऑब्वियसली 0 रहइबो राइट एटा किछि भी फॉर्म हेनी एटा ऑलरेडी 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर दउछि से कहला कि डिकम्पोजिशन जतले इक्विलिब्रियम पहुंचबो टोटल प्रेशर राइजेस टू 0.84 तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम रे एटा तो किछि गोटे
कंज्यूम हो जाइथिबो कंज्यूम हेले भी यार किछि फायदा नहीं 0.0 रे अंक दी जन कोफिशिएंट सेम अछि माने एथिरे प्लस x हला एथिरे भी 0.5 प्लस x हला 0.5 प्लस 2x जो हला सी हे गला 0.84 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर NH4 which is decomposition at this temperature केते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए केस रे केते हो से पचारछि तो 0.34 equal to 2x तो x equal to 0.17 तो ये केस रे हमर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसीबो H2S रो पार्शियल प्रेशर into NH3 रो पार्शियल प्रेशर that is 0.5 plus 17 that is 0.67 into 0.17 0.67 into 0.17 केते आसीबो जदि हम कैलकुलेट करिया सेटा आसीबो 0.113 माने 0.11 होची राइट आंसर हला तो थैंक यू